الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا غوثنا و غیاثنا ملجانا و مأوانا ابی القاسم محمد ابن عبداللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الاجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھ دیں جی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. زلف چہرے پہ جو دیکھی تو یقین آیا ہے، آسماں چھوڑ کے جبریل یہیں آیا ہے. دیکھ کر سارے نبی کہنے لگے تھے اقصا، آج محفل میں حسینوں کا حسین آیا ہے. ناز کرتا ہے قمر رات کی تنہائی میں، ناز کرتا ہے قمر رات کی تنہائی میں، شوق سے چومنے طیبہ کی زمین آیا ہے. روز محشر میں پکاریں گے گناہگار سبھی، روز محشر میں پکاریں گے گناہگار سبھی، دیکھو دیکھو وہ مدینے کا مکین آیا ہے. اس کے چہرے پہ عیاں، اس کے چہرے پہ عیاں ہوتی ہے رونق اظہر، اس کے چہرے پہ عیاں ہوتی ہے رونق اظہر. شہر طیبہ میں جو غمگین حزین آیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہماری یہ پاک طیب طاہر مطہر نسبتیں قائم اور دائم رہیں. نسبت اور تعلق کی اہمیت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں کتاب ماضی کے کچھ اوراق پلٹنا ہوں گے، ہمیں مظاہر فطرت کو دیکھنا ہوگا، ہمیں نگاہ آسمان کی بلندیوں کی طرف کرنا ہوگی کہ تاکہ ہمیں نسبت اور تعلق کی اہمیت سمجھ آ سکے. نظام شمسی کے سیارگان کو ایک نظر دیکھنا ہوگا. یہ مریخ، مشتری، عطارد، نیپچون، زمین، چاند، یہ کہاں کے ہیں اور یہ کس طرح اپنے مدار میں چلتے ہیں اور کیوں کر اپنے مدار میں چلتے ہیں. بات یہی ہے کہ ان کی نسبت اور تعلق اپنے مرکز کے ساتھ قائم اور دائم ہے. اگر یہ اپنی نسبت، اپنا تعلق اپنے مرکز سے منقطع کر لیں، تعلق ختم کر لیں، تو پھر بے کرام وسعتوں میں بھٹکتے چلے جائیں، بے نام و نشان بھٹکتے چلے جائیں. کسی کو ان کا نام یاد نہ ہو، کسی کو ان کا کام یاد نہ ہو. جب یہی کیفیت ہم روحانیت کی طرف لے کے جاتے ہیں تو روحانی مدار میں رہنے والا وہ شخص اپنی ذات کو قائم اور دائم اسی لیے رکھتا ہے کہ وہ اپنے مرکز کے ساتھ نسبت اور تعلق قائم رکھتا ہے. جس کسی نے روحانی تعلق اور نسبت صاحب صدق و صفا سے منقطع کر لیا تو پھر ایمان کے مدار سے نکل کر بے ایمانی کے وسعت بے کرام میں بھٹکتا چلا جائے گا. ایک نوجوان
जो आसमान की चोटी पर चढ़कर कहता है कि बाबा मैं रब की रबूबियत को नहीं मानता, मैं तेरी नबूवत को नहीं मानता, है नबी का बेटा, लेकिन जो ही उसने अपना रूहानी ताल्लुक मुल्क अता कर लिया तो फिर तूफान नूह का एक हल्का सा थपेड़ा इसे अगर काब कर देता है। किताब माजी के इसी सफा पर एक और रवायत भी है कि एक बुढ़िया जो कमजोर है, नहीफ है, लाचार है, बीमार है, लेकिन अपनी निस्बत और ताल्लुक अल्लाह के नबी से कायम और दायम रखे हुए है। वो कहती है कि ऐ नूह, मैं आप पर ईमान लाई, ऐ अल्लाह के नबी मैं आपके रब पर ईमान लाई, मैं आपके रब को तस्लीम करती हूँ, उसी के सामने जबीने न्याज झुकाती हूँ, जो आप चाहते हैं उसी तरह मैं चाहती हूँ, जिससे आप नफरत करते हैं उसी से मैं नफरत करती हूँ, मेरा ताल्लुक, मेरी रूहानी निस्बत आपके कदमों में है। ये बुढ़िया अपने कमजोर से झोंपड़े में है, नहीफ भी है, लाचार भी है, बीमार भी है। जब तूफान नूह आया, जमीन तहोबाला होकर रह गई, बड़े बड़े पहाड़ अपनी जगह से सिरकते चले गए, ऊंचे ऊंचे दरख्त अपनी जगह उखेड़ते दूर दराज इलाकों में बिखरते चले गए। तो उस पूरे तूफान नूह में सिर्फ ये झोंपड़ा था जिस झोंपड़े के अंदर ये बुढ़िया रहती है, जो कमजोर भी है, नहीफ भी है, लाचार भी है, बीमार भी है। इसके झोंपड़े को उस तूफान ने कुछ ना कहा, इस बुढ़िया को उस तूफान ने कुछ ना कहा। वजह क्या थी? वजह यही थी कि इस बुढ़िया की निस्बत और ताल्लुक अल्लाह के सच्चे नबी के साथ कायम और दायम है। किताब माजी का दूसरा वर्ग जरा देख लें। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार है, सभी बैठे हुए हैं, बातें सुनी जा रही हैं, मसाइल हल किए जा रहे हैं कि इतला मिली कि मुल्क सबा की मलका बल्कीस यहां पहुंचने वाली है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कौन है जो मलका सबा का तख्त ले आए, मलका बल्कीस का तख्त यहां ले आए। उसके पहुंचने से पहले मुहीब जिन उठ के कहता है कि हुजूर मैं ला सकता हूं, ये तो बड़ा काम नहीं है, और ये मुसाफत 900 मील की मुसाफत है। इस तख्त को 600 अफराद मिलकर उठाया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, बताओ कितनी देर में ले आओगे? अर्ज करता है, हुजूर ये आपकी महफिल के बर्खास्त होने से पहले वो तख्त यहां पर होगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, बैठ जाओ, इतनी देर नहीं चाहिए, इससे पहले चाहिए। इसका मतलब है कि नबी जानता है कि 900 मील की मुसाफत पर पड़ा हुआ वो तख्त जिसे 600 अफराद मिलकर उठाते हैं, इससे कहीं पहले लाया जा सकता है। तो आपके सहाबी आसिफ बिन बरखिया खड़े होते हैं, हाथ बांध के अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के नबी, वो तख्त जो 900 मील की मुसाफत पर पड़ा है, जिसे 600 अफराद मिलकर उठाते हैं, वो यहां पर मैं ला सकता हूं। फरमाया, कब तक? अर्ज करते हैं, हुजूर देर नहीं होगी, पलक झपकने से कहीं पहले, अभी पलकें मिलेंगी नहीं, अभी इनका इत्तिसाल नहीं होगा कि 900 मील के मुसाफत पर पड़ा हुआ तख्त यहां पर पहुंच जाएगा। और फिर चश्मे फलक ने यह नजारा कर लिया, अभी पलकें मिली नहीं, अभी आंख झपकी नहीं कि 900 मील की मुसाफत पर पड़ा हुआ तख्त पलक झपकने से कहीं पहले यहां पर मौजूद है। ये निस्बत और ताल्लुक का असर था कि आसिफ बिन बरखिया में वो कैफियत पैदा हो गई कि दूर दराज की चीज पलक झपकने से पहले ले आते हैं। किताब माजी का एक और वर्ग ये बनी इसराइल है, 400 साल से मुकय्यद है, गुलामी में है, मिस्रियों की कैद में है, जुल्म सहते हैं, जबर सहते हैं, मगर आजादी का सूरज देखना नसीब न हुआ। लेकिन जो ही इस बनी इसराइल की निस्बत और ताल्लुक अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह से हो जाता है, फिर इसी बनी इसराइल को रास्ता मिलता है, इसी बनी इसराइल को आजादी मिलती है। जंगलों और बेलों से गुजरते हैं तो तारीक रास्तों में रोशनी का एहसास होता है, पहाड़ों से गुजरते हैं तो दरमियान से रास्ता मिलता चला जाता है, दरिया के किनारे पहुंच जाते हैं,
तो दरिया दरमियान से फट के रास्ता दे दिया करता है। कौन नहीं जानता कि बैतुल्लहम में नाबीना तो पहले भी थे, कोढ़ के मरीज पहले भी थे। कौन नहीं जानता कि लोगों की अमवात पहले भी हुआ करती थी। लेकिन क्या बात है कि जो ही इस इलाके की निस्बत, इस इलाके के रहने वालों की निस्बत अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह से हो जाती है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मादरजात अंधों की आंखों पर हाथ रखते हैं तो उनकी बेनाई लौट आती है। किसी कोढ़ी के बदन पर हाथ रख देते हैं तो उसे शिफा याद करके रख देते हैं। किसी मुर्दे को बुलाकर तुम बिइज़्निल्लाह फरमाते हैं तो मुर्दा उठ खड़ा होता है। ये ताल्लुक और निस्बत की बात है। जब ताल्लुक और निस्बत की बात करना मकसूद हो तो फिर जहां ताल्लुक और निस्बत अपनी जात पर खुद फख्र करें, अपने आप को नुक्ता मेराज पर समझें, वो मरहला उस वक्त आता है कि जब बात हबीब किबरिया की आती है, जब बात शहे हरदो सरा की आती है, जब बात हजरत आमना के लाल की आती है। यहां पर निस्बतें और ताल्लुक भी अपने आप को नुक्ता अरूज पर समझते हैं, वो अपनी महराज खुद समझते हैं। कौन नहीं जानता कि अरब के इस खित्ता में एक इलाका यसरब था। लोग उससे दूर से गुजरते कि कहीं कहीं यसरब में न जाना पड़ जाए। वजह क्या थी कि जब इसे यसरब कहा जाता था, बीमारियों का घर था। लोगों का तसव्वुर ये था कि यहाँ पर बीमारियां रहती हैं। जो भी यसरब की हदूद में दाखिल होता है उसे बीमारियां चिमट जाती हैं, हत्ता कि उसकी मौत वाक़या होती है। काफिले दूर दराज का फासला तय करते हुए उससे गुजरते, लेकिन जो ही इस यसरब की निस्बत रसूलुल्लाह से हो जाती है, जहां पर कदमी अथर लगते हैं उसी खाक को खाके शिफा का दर्जा मिल जाया करता है। कौन नहीं जानता कि मक्का मुकरमा तो पहले भी था, ये शहर पहले भी था, लेकिन कसम उस वक्त इरशाद फरमाई गई जब इस शहर की निस्बत रसूलुल्लाह से हो जाती है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ए मौला कसम क्यों है, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए महबूब इस शहर में तू रहता है। कसम इसलिए इरशाद फरमाई यहाँ पर तेरा जन्म हुआ, यहाँ पर तेरी विलादत हुई, इस शहर में तेरा बचपन गुजरा, इस शहर में तेरा लड़कपन गुजरा, इस शहर में तुझे जवानी आई, इस शहर में तूने ऐलाने नबुव्वत किया था। निस्बत और ताल्लुक इस शहर का तेरे साथ हुआ है। तो रब्बिल अमजल भी इस शहर की कसम इरशाद फरमाता है। सभी लोग जानते और पहचानते हैं कि अरब की इस वादी में, मक्का में एक शख्स उमर इब्न खत्ताब रहता था। बड़ा जर्री था, बड़ा बहादुर था, लेकिन इस्लाम की जब दावत मिली है तो इस्लाम के बहुत खिलाफ था। कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। उस वक्त जब ये दामने मुस्तफा से मुंसलिक न हुए थे, इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे। उस वक्त आलम यह था कि इन्हें यह खबर ना होती कि मेरे घर में कौन सा वाक़या हो रहा है। इन्हें यह खबर न थी कि मेरी बहन दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई, मेरा बहनोई ईमान वाला बन गया। लेकिन यही उमर इब्न खत्ताब जब दामने मुस्तफा से मुंसलिक हो जाते हैं, जब निस्बत और ताल्लुक कायम कर लेते हैं, तो मदीना की सरजमीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन यही सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। खुतबा इरशाद फरमाते हुए सहाबा बैठे हैं, कुछ देर रुके, रुकने के बाद निगाह उठाई, चेहरा मशरक की तरफ किया और आवाज दी, या सारियतल जबल, या सारियतल जबल। सहाबा हैरान हैं कि खलीफतुल मुस्लिमीन को क्या हो गया कि सारिया तो इस शहर में नहीं है, मदीना की हदूद में नहीं है, ये किसे सदाएं दे रहे हैं। मालूमात और इल्म का यह मकाम है कि बैठे मदीना में हैं, सारिया ईरान के महाज पर हैं। सहाबा ने, दोस्तों ने वो दिन ज़हन में नशीं कर लिया, वक्त ज़हन नशीं कर लिया। जब सारिया वापस आए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो दोस्तों ने एक हल्का बना लिया और पूछते हैं कि यार सारिया एक बात तो बताओ,
जुमे का दिन था, फलां तारीख थी, फलां वक्त था, कोई अजीब वाकया जो तूने महसूस किया हो। हजरत सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ देर सोचा और फरमाया, हाँ यार, एक अजीब वाकया हुआ। मैंने अपनी फौज की सफ़े तरतीब दे ली, सामने ईरानी फौज मौजूद थी। मैंने मेमना की तरतीब दी, मैसरा की तरतीब दी, कलब का हल्का बनाया, यही तरतीब दुश्मनों ने भी दे दी। फिर तबले जंग बजा, उनकी तादाद ज्यादा थी, नेजों से नेजे टकराए, शमशीरों सना एक दूसरे से टकराती रहीं, दबाव हम पर बढ़ा, उनकी तादाद ज्यादा थी, हमारे कदम उखड़े, हम पिछले पांव आए, भाग रहे थे, उल्टे पांव चल रहे थे कि अचानक खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सदा आती है, या सारियतुल जबल, ए सारिया, पहाड़ के पुष्ट पर रख, पहाड़ के पुष्ट पर रख कर तरतीब दे, फिर हमला कर। मैंने आपकी हदायत पर अमल किया, उसी तरतीब दी, फिर मेमना को तैयार किया, मैसरा को तैयार किया, कलब की तरतीब दी। जब हमला किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें फतह अता फरमा दी। ये निस्बत और ताल्लुक की बिना पर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम हासिल हो गया कि बैठे कहाँ हैं, देख कहीं रहे हैं। अल्लाह का बंदा होता जमीन पर है, देखता लौहे महफूज को है, चलता जमीन पर है, करोड़ों नूरी साल की मुसाफत पर होने वाली हरकत को महसूस कर लिया करता है, बैठता जमीन पर है, ताख्तु सराम में रेंगने वाली चींटी की मंजिल को देख लिया करता है। निस्बत और ताल्लुक के हवाले से शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह याद आए हैं, जिक्र करते हैं निस्बत और ताल्लुक की अहमियत समझाने के लिए। गिले खुशबू व दर हमाम रोजे, रसीद अज दस्त महबूबी बदस्तम, बदो गुफ्तम के मुश्की या अबीरी, कि अजबुवे दिलावेजे तुमस्तम, बगुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम, वलेकिन मुद्दते बा गुल नशिस्तम, जमाले हम नशीदर मन असर कर, मगर ना मन हमा खाकम के हस्तम। आप फरमाते हैं कि मैं एक हमाम में गया, एक दोस्त ने एक खुशबूदार मिट्टी का ढेला मुझे दिया, मैंने उस ढेले को सूंघा, उसकी खुशबू बड़ी मशहूरकुन थी, बड़ी प्यारी थी, उसकी लहक बहुत दिलनशी थी। मैंने जुबाने हाल से उस मिट्टी के ढेले से कहा, तू बता कि मुश्क है या अंबर, तेरी खुशबू बड़ी दिलावेज है, बड़ी मशहूरकुन है। तो जुबाने हाल से वो मिट्टी बात करती है कि ऐसा दीप बगुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम, वलेकिन मुद्दते बा गुल नशिस्तम, ऐसा दीप हूं तो मैं मिट्टी, मेरी फितरत मिट्टी है, मेरी तखलीक मिट्टी है, लेकिन बात यह है कि मैं बड़ा अरसा फूलों के साथ रही हूं। जमाले हम नशी दरमन असल कर, वगरना मन हमा खाकम के हस्तम। ऐसा दी बस उसी सोहबत का असर था कि फूलों के साथ रही हूं, वही सोहबत थी कि उनका हुस्नो जमाल और कमाल मेरे अंदर सरायत कर गया और मैं खुशबूदार बन गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी